चालू होने वाला कि नहीं? Good evening, everybody. Can you listen me well? Good evening, sir. Yes, Good evening, sir. Yes, good evening, everybody. It's after a long time we are meeting again, and I'm listening your voices. So hope you all are well. And let's move with the topic. कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग? बोलिए. Thermodynamics. वेरी गुड. और आज भी थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कस करना है हम लोग, उसका आगे पार्ट. बराबर है? Okay. So hope you are able to see me well and hear well. Okay. So थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर. So anyone please, anyone amongst you. So are you able to recall what we have seen in last lecture? Yes, please. Anyone? Of maximum work, Very good. heat and internal energy, Very good. Or derivation also. very good. Furthermore. Okay. A lot has been recapped by you. Chalo, let's have a bit recap of the thermodynamics. It's very important and very fundamental and conceptual chapter, and it is one amongst my favorite one. So thermodynamics and energetic, what we have discussed till that here in the chapter. So let's have a recap within 5 minutes. As the name suggests, thermodynamics is the chapter which is related with the energy. And there are different forms of energy. So we have seen the definition of thermodynamics. Thermodynamics is a branch of chemistry. It is a branch of physical chemistry which deals with heat energy and its interrelationship with other forms of energy. Particularly heat energy and its interrelationship with other forms of energy. That is what we have discussed here. That is the definition of thermodynamics what we have seen. Furthermore, this is the chapter where we have seen limitations initially. पहले हमने limitation discuss कर लिए थे. तो सबसे पहला limitation था thermodynamics consider only initial state and final state. It never considered path for this system. दूसरा था thermodynamics consider only macroscopic properties. Thermodynamics never consider microscopic properties as like structure of atom, proton, neutrons, electrons. And third one, thermodynamics never consider a rate of a chemical reaction. These are the three limitations. So this is the chapter where initially we have discussed the limitations of this chapter. The reason behind that, heat or energy. But energy is a vast topic, so we have to limit the study specifically to the heat and its interrelationship with other forms of energy, because there are many forms of energy and it becomes much complicated to discuss each and everything. So that's why thermodynamics has made a framework. We have to discuss heat energy and its interrelationship with other forms of energy. Also, in order to get into this chapter well, we have seen many fundamental definitions or many fundamental concepts which are used here in thermodynamics. So we have seen fundamental definitions. And what are these? We have seen system, we have seen surrounding, we have seen boundary. Also, we have seen 3 types of system: open system, closed system, isolated system. Also, we have one for the next, that is called as extensive property and intensive property. Then we have one for the state of a system. Then we have seen a state function. Then we have seen some fundamental definitions like process, isoporic process, isobaric process, isothermal process, adiabatic process, reversible process and irreversible process, even cyclic process too again. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. फिर उसके बाद देखे थे हमने thermodynamic equilibrium. What is thermodynamic equilibrium? And there are different types of equilibrium. There is a chemical equilibrium, there is a mechanical equilibrium. That is what we have discussed under these heads. Then furthermore we have seen that is units being heat and work. Both are the forms of energy. Energy is a very vast, and heat is also one form of energy. Work is also another form of energy. So heat and work both are the forms of energy. So whatever units of the energy are the units of heat and work. So we have seen कौन से units हम लोग इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया था. तो पहला था उसके अंदर लीटर एटमॉस्फेयर, दूसरा था हमारा जूल,
फिर था हमारा अर्ज और फिर था हमारा कैलोरी। तो ये चारों यूनिट्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं और इनके रिलेशंस भी हमने डिस्कस किया है। So these were the fundamental definition, जो definitions और जरूरी थे, जरूरी है in order to get the chapter well. फिर furthermore हमने इस चैप्टर को शुरू किया और उसके अंदर पहला डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था, that is work pressure, the pressure volume type of work, that is what we have seen, that is work obtained in isothermal irreversible expansion of the gas, and W is equal to minus P delta V, that is what we have proved here in the chapter. First derivation. Then the second, that is work obtained in isothermal reversible expansion of the gas, that is the concept of maximum work done, and the derivation for the maximum work done, ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था और वो भी हमने उसके अंदर देखा, and that was W max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1 or either P1 upon P2 according to Boyle's law. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। तो ये दोनों डेरिवेशन हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। सो पहला था हमारा W is equal to minus P delta V और दूसरा था W max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1 or either P1 upon P2. So these are the two works what we have seen here in the chapter. We have discussed here. Clear with this? Now we have to go ahead with some of the concepts. One of the important. शायद मैंने last lecture में और दो concepts सिखाए थे आपको. What is the concept of heat? What is the concept of internal energy? दोनों मैंने आपको बताए थे. और heat जो होता है, it is also one of the form of energy, and that is denoted by Q. So whenever any system releases amount of release heat to the surrounding, or it can absorb heat from the surrounding, the difference between the two temperatures denotes the heat, and that is what we have seen, and that is denoted by Q. So ये heat भी हमने देखा, and any system can lose heat to the surrounding, or any system can absorb heat from the surrounding. Depends upon कौन सा system है उसके ऊपर, because there can be a isolated system, or there can be a open system, there can be closed system. तो कौन सा system है उसके ऊपर depend करेगा. But we have seen that again heat concept हमने उसके अंदर discuss किया था. तो heat can be a positive, मतलब plus Q, or heat can be negative, minus Q. So minus कब होता है whenever heat is lost by the system, और plus कब होता है whenever heat is absorbed by the system from the surrounding. सेकेंड हमने उसके अंदर डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल यू, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। या फिर the sum total of SUM, sum total of different types of energies present in the substance is also called as its internal energy. इसके बारे में मैंने कहा था कि सपोज ये पेन है, तो पेन एक सिस्टम है, मैटर है, मटेरियल है, इसका अपना एक एनर्जी है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस पेन का है। या फिर इस पेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट है, डिफरेंट पोटेंशियल है, काइनेटिक है, उसके अंदर भी काफी सारे सब टाइप्स है, ये दोनों का जो सब टोटल होता है, that total is nothing but its absolute amount of energy. इसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो सिर्फ इसका है। तो दुनिया में प्रेजेंट हर पार्टिकल का, हर मटेरियल का, हर क्रिस्टल का, हर सिस्टम का अपना एक एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जिसके ऊपर बाहर की किसी भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी ऐसा कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स इंटरनल एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं sum total of, sum again SUM, SOM एक वर्ड है और SUM है, sum SUM, sum total of different types of energies present in the substance is known as its internal energy. जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल के वापस दो टाइप होते हैं, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। काइनेटिक के कई सारे टाइप है, बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी is the energy associated with due to virtue of its motion, any type of motion, whatever the particles and that material or system shows, all that motions are related with this kinetic energy, that is a part of kinetic energy. And whatever the interparticle force of attractions, that is intermolecular, intramolecular bonding and all that, that is related with the potential energy. So potential energy is due to the virtue of its position. Definition define कर सकते हैं, potential energy is due to virtue of its position, and you can say kinetic energy is due to virtue of its motion, and the sum total of all these energies count to be internal energy, and that is denoted by U. और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि किसी भी सिस्टम का, जैसे कि ग्राफिकली डिस्कस करते हैं हम लोग, सपोज ये हमारा ग्राफ है, सिस्टम इज इन अ स्टेट ए और दिस इज द स्टेट बी, सिस्टम ए से बी तक जाता है,
तो सिस्टम ए का इंटरनल एनर्जी U1 और सिस्टम बी का इंटरनल एनर्जी Q2 इंटरनल एनर्जी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ना U1 मेजर कर सकते हैं ना U2 मेजर कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस, और ये सारी एनर्जीज हम लोग नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि जितने नॉन एनर्जी के सोर्स है उतने मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने भी सोर्स है कि जो हमें आज तक पता नहीं, जो नॉन नहीं है, तो उसे कैसे मेजर करेंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन है। तो वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और इसीलिए हम ना U1 मेजर कर सकते हैं ना U2 मेजर कर सकते हैं, लेकिन वी कैन मेजर डेल्टा U। डेल्टा U क्या होता है, दैट इज U2 माइनस U1। डेल्टा U इज U2 माइनस U1। डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, जस्ट मिनट, हाँ ओके, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, दैट इज यू कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी because it is the difference of U2 minus U1. This is the internal energy of final state, this is the internal energy of initial state. The difference between two is delta U, which is fixed. Though we can't measure U1, we can't measure U2, but we can measure delta U, है ना। इसके बदले मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि हम हमारे टू व्हीलर के अंदर पेट्रोल पुट करते हैं, मानो हमने 1 लीटर पेट्रोल पुट कर दिया, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना एनर्जी है आज हम नहीं जानते, क्योंकि जितना नॉन सोर्सेस है उससे हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फोर्सेस है, ऐसी कुछ चीजें है जो हमें नॉन नहीं है। लेकिन हमने पेट्रोल डालने के बाद हमारी गाड़ी कुछ तो डिस्टेंस के लिए चलती है, तो जितना भी वर्क मिलता है, कुछ गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, कुछ 90 किलोमीटर चलती है, उतना तो हमारा फिक्स है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन प्रेजेंट इन दिस पेट्रोल 1 liter पेट्रोल वी डोंट नो, बट व्हाटएवर द मशीन अवेलेबल दैट रिमूव्स द वर्क व्हिच इज 60 किलोमीटर पर आवर इन दैट फॉर्मेट। सो ये हमारा सोर्स होता है, ये हमारा नॉन पता होता है, तो इन दैट सेंस ये होता है। या फिर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था कि दोस्त काम में दिया था कि दोनों दोस्त हम लोग पार्टी करने चले जाते हैं और किसी ने बिल भर दिया, तो उसके हम जब होटल में चले गए थे तो उसके पैकेट में कितने पैसे पता नहीं था, बाद में उसके पैकेट में कितने पैसे पता नहीं, लेकिन हमारे सामने उसने होटल वालों को अगर 200 रुपए दिया तो 200 रुपए हम जानते हैं, लाइक दिस। तो टोटल इंटरनल एनर्जी U1 नहीं मेजर कर सकते, टोटल इंटरनल एनर्जी U2 नहीं मेजर कर सकते, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो या तो सिस्टम से बाहर आएगा तो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, दैट इज यू कैन सी हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा U। तो इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट टर्म, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ सिग्निफिकेंट टर्म, दैट्स व्हाट वी कैन मेजर। So that's why heat and internal energy, these are two major concepts and which are very useful. और यहाँ से आगे इसके साथ चलना है, तो heat is measured by Q और internal energy is measured by U, and that is U1 for initial state, U2 for final state, and the difference is delta U. और ये बात ध्यान रखिएगा, we can't measure U1, we can't measure U2, but we can measure delta U because that difference measure कर सकते हैं हम लोग, because that will be either lost by the system or either by the absorbed by the system, so we can measure that part. So this is what we are, these are the two concepts what we are seeing, that is heat and internal energy. Now let's move to the next concept which is very important. We can say it's a first law of thermodynamics. So let's move to the first law of thermodynamics. जैसे कि ये thermodynamics चैप्टर के अंदर हमें 3 लॉ डिस्कस करने हैं thermodynamics के, तो 3 में से 2 लॉ तो आप अच्छी तरह जानते हो, तीसरा भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, मतलब लॉज की बात करेंगे तो हमारे डेली रूटीन लाइफ में आते हैं, हम जानते हैं, but हमें पता नहीं कि this is called as your first law or second law of thermodynamics. So let's move to the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. As usual मैं handwrite बुरा है तो समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. देखिए आपने स्कूल में देखा था, we have seen the law of conservation of energy. Will anyone state for me what is law of conservation of energy? Anyone please? Law of conservation of energy. Bolo. Energy can neither be created nor destroyed. Nor be destroyed, but can be converted from one form to another. Very good, very good. I can hear. I think so. It's Aryan sound as well as there are many sounds. Or I'm very glad to see. But you, many amongst you know the definition, that is energy can neither be created nor be destroyed. Very good. ये लो हम लोग देखते आए, और देखिए यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, मैंने बताया था कि आप जानते हो एनर्जी कैन नाइदर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज इटसेल्फ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but one form of energy can be converted into another form. This is itself is a first law of thermodynamics. ठीक है, बट ये स्टेटमेंट जानते हो, लेकिन होता क्या ना कि इस स्टेटमेंट के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट होता है, एक ही लॉ है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, और ये बहुत मजे की बात है कि हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेटमेंट जो आपने बताया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से क्या किया जा सकता है?
when we are dealing with thermodynamics, studying thermodynamics, we deal with system and surrounding. दुनिया में दो ही चीजें हैं थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से, दुनिया में दो ही चीजें, एक है सिस्टम, बाकी बचा हुआ सारा सराउंडिंग है। अगर ये पेन मेरा सिस्टम है तो बाकी पूरा सब सराउंडिंग ही सराउंडिंग आता है। तो दुनिया में दो ही चीजें एग्जिस्ट होती है, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। इन दैट सेंस पहले लॉ का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से आता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दुनिया में कोई एनर्जी तैयार भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, बस एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि कोई तैयार भी नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट होता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मैं इसे टोटल लिखता हूं, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये उसका दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, उसी तरीके से देखिए, दुनिया में दो ही चीजें, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कांस्टेंट, दो इट इज एक्सचेंज बिटवीन बोथ। देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है और यूनिवर्स में दो ही चीजें, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब है टोटल एनर्जी किसका होगा, सिस्टम का एंड सराउंडिंग का। सो total energy of system and surrounding remains constant though it is exchange between both। सिस्टम का चाहे सराउंडिंग में जाए, सराउंडिंग का चाहे सिस्टम में जाए, उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, मानो मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों हैं और हमारे दोनों के मिला के पैकेट में 500 रुपए, उसके पैकेट में कुछ रुपए, मेरे पैकेट में कुछ रुपए, कुल मिला के 500 रुपए, ठीक है। या हम मानते हैं उसके पैकेट में 300, मेरे पैकेट में 200 है और दोनों मिला के 500। अभी होता क्या है, मानो मैंने उसको और 100 रुपए दे दिया, तो उसके पैकेट में 400 बने, मेरे पैकेट में 100 बने, कुल मिला के 500 ही होते। या उसने मुझे 200 दे दिया तो कुल मिला के 500 ही रहेंगे। सो द एनर्जी दो इट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम का बाहर जाए या सराउंडिंग का सिस्टम में आए, कुल मिला के टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज थर्ड। तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट दो इट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फोर्थ वन की बात करते हैं। When we come to the fourth one, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever one form of energy disappears, other form must appear, क्योंकि energy can neither be created nor be destroyed। Energy को destroy नहीं किया जा सकता। In that sense, what happens here? Whenever one form of energy disappears, another form must appear। जैसे कि हमारे घर के अंदर मानो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बल्ब तक, ट्यूब तक चली जाती है, और ट्यूब पे आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट। फिर लाइट में कन्वर्ट होने के बाद हम ऐसा नहीं पूछते कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चला गया, कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज बीन कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी itself is one form of energy and light is also one form of energy। bulb or tube is the device which converts one energy into another one। तो electricity form is converted into light one। so this is what happens। this तो एक एनर्जी जब डिसअपीयर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब डिसअपीयर होती है तो लाइट अपीयर होता है। So this is, you can say, whenever one form of energy disappears, another form must appear। या फिर हमारे गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला और हमने गाड़ी भगाया, तो हमारे गाड़ी के अंदर का जो पेट्रोल है, गाड़ी चलाने के बाद गायब होता है, तो हम ऐसा नहीं पूछते कि हमारा ये कहाँ चला गया, because that disappears and at the same time work appears। तो work हम लोगों को मिल जाता है, and that is what we can say here, whenever one form of energy disappears, another form must appear। This is the law। and fifth law की बात करते हैं लोग। so when we come to the fifth law के अंदर देखिए आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो मशीन इट हैज बीन मेड व्हिच हैज एफिशिएंसी यूनिटी, या फिर नो मशीन इट हैज बीन मेड व्हिच विल वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं बना अभी तक, परपेचुअल मशीन कहा जाता है उसे। नो मशीन इट हैज बीन मेड व्हिच हैज मतलब व्हिच विल वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम किए बिना काम करेगा ऐसा कोई मशीन दुनिया में बना नहीं। देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम जब ग्रास्पिंग कर रहे हैं, एट दैट टाइम हम अगर खाना खाएंगे, पेट भरा हुआ है, तो ग्रास्पिंग करना, पढ़ाई करना सिंपल बात है ना। मोबाइल खेलना बात ठीक है। हम अगर खाली पेट अगर मोबाइल खेलने जाते हैं या फिर पढ़ाई करने जाते हैं तो सिंपली इम्पॉसिबल। दिस इज आल्सो मशीन व्हिच कांट वर्क विदाउट एनर्जी। फोर व्हीलर की बात करते हैं, टू व्हीलर की बात करते हैं, वो पेट्रोल के बिना गाड़ियां नहीं चलेगी। सीएनजी, पेट्रोल या बैटरी, कुछ तो चाहिए उसके अंदर, है ना। मेरे पहले जमाने में पेट्रोल की गाड़ियां थी, अभी फिर सीएनजी की आई, फिर अभी जो पूरा है ये है, मतलब एनर्जी का काल है, मतलब जिसके अंदर टाइम है, जिसके नाम लोग बैटरीज की बात करते हैं। तो सोलर पे चल सकते हैं, या हो सकता है कि
हम बैटरी रिचार्ज करें और उसके ऊपर हम गाड़ी चलाएं। इलेक्ट्रिक कार का जो दौर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दौर है वो अभी चल रहा है, बट उसके अंदर तो एनर्जी रिचार्ज करके चार्जिंग करके स्टोर करना पड़ता है हम लोग को। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये होता है कि नो मशीन इन दिस वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। दैट्स व्हाट वी कैन। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So you can say these are the statements of first law of thermodynamics. Also, you can say these are the different interpretations of first law of thermodynamics. जो हमने पहले स्टेट किया था, energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted to another. दूसरा देखा, total energy of the universe remains constant. तीसरा, total energy of the universe remains constant between system and surrounding, though it is exchanged between them. Yeah, total energy of the universe, total energy of the system and surrounding remains constant, though it is exchanged between both. Next, what we are saying, that is, you can say whenever one form of energy disappears, another form must appear. And last, what we are seeing here, इसका तो जो हमने last में देखा, that is, you can see here कि no machine in this world can work without consuming energy. मतलब it is difficult to build a perpetual machine. Perpetual मतलब ऐसा कि imaginary machine है जो without consuming energy काम करेगा। हाँ, minimum energy पे काम करेगा, but energy तो उसके लिए चाहिए। without consuming energy देने का कोई machine काम नहीं कर सकता। That is what we have. So these are the statements of first law of thermodynamics. ठीक है? Now, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आइंस्टाइन is a very genius scientist, and ये जो लॉ रखा उसके अंदर भी आइंस्टाइन एक चेंजेस करता है। आइंस्टाइन चेंजेस लेके आता है। जैसा मैंने बताया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट करके एक चैप्टर था हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शायद याद आता होगा आपको कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा लॉ उस टाइम रखा गया था। दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में था वो, और उसके अंदर ये था, वो लॉ ये कहता है कि मास, किसी भी केमिकल रिएक्शन के मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और आइंस्टाइन के दिमाग में सवाल आया था कि अगर मास ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कहां से आता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट एब्सॉर्ब हो रहा है वो कहां जा रहा है। दैट वाज द बिग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द आइंस्टाइन। ही ट्राइड टू फाइंड आउट आंसर फॉर दैट, एंड ही फाउंड दैट whenever there is an exothermic reaction, there should be some mass lost by the system. There should be some mass lost by the reactant, because of which this energy is released. नहीं तो energy कहाँ से आता है? So that was the answer he found to that. There should be some loss in the mass, and that is the mass defect concept जो उन्होंने रखा था। तो अगर energy, heat mass से तैयार होता है, क्योंकि there should be loss in the mass, and that's why energy is created. That's why heat is released. Heat is one form of energy. So mass is also one form of energy, and that's why Einstein modified first law of thermodynamics, क्योंकि mass is also form of energy. हम हमारी टू व्हीलर के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर पेट्रोल पुट करते हैं, डीजल पुट करते हैं। ये पेट्रोल डीजल हम लीटर में लेके आते हैं। It has some mass, it has some mass, it has some volume. हम लेके आते हैं, हमारे गाड़ी में पुट करने के बाद हम गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद वो 100% खत्म हो जाता है। मतलब जितना भी उसका आपका एवरेज है उसके हिसाब से वो पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर तो सवाल नहीं पूछते कि where my petrol has gone, why my diesel has gone, where it has gone, because हमने जो पुट किया था उसका वर्क के फॉर्मेट में रिजल्ट मिल गया। सो जो मास था वो कन्वर्ट हो गया। या फिर हम खाना खाते हैं, दैट इज आल्सो कन्वर्टेड टू द एनर्जी, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है उस तरीके से। तो इसका मतलब मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है। दिस इज बीन स्टेटेड बाय आइंस्टाइन, प्रूव किया आइंस्टाइन कि मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है, और इसीलिए उसने फर्स्ट लॉ को बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। नॉट बदल दिया बट मॉडिफाई कर दिया। और क्या मॉडिफाई कर दिया उसने? उन्होंने कहा कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी और मास दोनों भी कांस्टेंट है। अब देखिए ना, दुनिया में इतना सारा मास है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कई सारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी एक, उनको भी एक मास होता है, और उन्हें हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो that is the total mass and energy of the universe remains constant. This is what the modified first law of thermodynamics because of Einstein. Total mass and energy of the universe remains constant. This has been put forth by Einstein. Bear with this. Now let's go to the mathematical deduction of this first law of thermodynamics. Okay. Mathematical deduction of this first law of thermodynamics. What is the mathematical derivation? हम इसे mathematically ऐसे prove करेंगे। Statement तो देखिए हमने। We have seen different statements for this first law of thermodynamics. How we are going to mathematically prove that? तो देखते हैं हम लोग उसका कंसिडरेशन है, मतलब mathematical deduction of first law of thermodynamics. So you can say mathematical deduction. How we are going to prove mathematically what is the first law of thermodynamics? ठीक है, तो आप देखिएगा
कि हम कंसिडर करते हैं सिस्टम, कंसिडर a system, consider a system having internal energy U1. Internal energy कितना है? U1. At initial state, this system absorbs Q amount of heat. कितना amount of heat absorb किया? Q amount of heat absorb किया. Then its internal energy becomes U2. System का internal energy कितना था? U1. U1 internal energy था system का. जैसे कि मानो मैंने मेरा पेन एक system है. System का internal energy कितना है? U1. This system has absorbed Q amount of heat. तो Q amount of heat system ने absorb कर दिया. तो उसका internal energy बढ़ेगा. मतलब मेरे पैकेट में 100 रुपए थे, उसके अंदर 50 आ गए, तो 100 प्लस 50 150 हो जाएंगे. So addition तो हो जाएगा. System का internal energy U1 है. It has absorbed Q amount of heat. So its internal energy changes and that becomes U2. So this is the internal energy of initial state and this is the internal energy of final state. So its internal energy becomes U2. बदल गया. अगर हीट रिलीज करेंगे तभी ये बदलेगा और कम बढ़ेगा तभी भी ये चेंज होगा. The reason behind that, this is the initial state, is the final state. So heat may be absorbed, may be released. हमने consider किया heat is absorbed by the system. U2 बन गया. Whereas some amount of heat or some amount of energy used for doing the work, कुछ energy work के form में lost. So some energy lost in the form of work. Work के form में चला गया. मतलब whatever the work is obtained, जैसे कि piston का displacement होता है, तो उसमें work हो रहा है. हम हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लेकिन मतलब ढकेल के नहीं बट चला के, तो उसमें भी वर्क मिलता है. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि दैट इज द वर्क. तो कुछ वर्क, तो सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क. देखिए हमारा सिस्टम जिसका इंटरनल एनर्जी U1 था, इट हैज अब्सॉर्ब्ड Q amount of heat, its internal energy becomes U2, whereas some amount of energy is lost in the form of work. तो अभी कंसीडर करते हैं हमारे कंसीडरेशन के हिसाब से, तो इंटरनल एनर्जी कितना था? U1. It has absorbed Q amount of heat. So its internal energy becomes U2, whereas some amount of energy is lost in the form of work, that is W. That is W. तो इतना आपको मिल जाएगा. So अगर इतना हम लोग को मिल जाता है, तो U1 plus Q is equal to U2 minus W. ये हमने जो कंसीडर किया था उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन बन जाता है. आप देखिए जैसे इसे सॉल्व करते हैं, U1 इस तरफ कैरी करते हैं, तो Q is equal to U2 minus U1 minus W. इतना हम लोग को मिल जाता है. Clear with this? So now this Q is equal to U2 minus U1 is delta U, that is delta U minus W. This is you can say work. अभी हमारे लेटेस्ट बुक के हिसाब से अगर हम चेंजेस करते हैं तो कैपिटल Q आएगा. दिस नथिंग मोर देन दिस. दिस विल बी कैपिटल Q. तो कैपिटल Q आएगा. कैपिटल Q आप ले सकते हो, उसके हिसाब से लीजिए. सो Q is equal to delta U minus W इतना मिल जाता है. अभी हम W का वैल्यू जानते हैं. W is equal to minus P delta U, है ना? बट हम जानते हैं W is equal to minus P delta V. ये इक्वेशन भी हमने देखा है. So we can put this equation here. So this is equation number 1. This is equation number 2. Putting 2 in 1, what we get here, that is Q is equal to delta U. मैं capital Q लिखता हूँ क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से capital Q is equal to delta U plus P delta V. ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस. तो यहाँ पे बनेगा P delta V. This is the equation what we get here. ये हम लोगों को इक्वेशन मिल जाता है. This is the mathematical deduction for first law of thermodynamics. Mathematical proof of first law of thermodynamics. Q stands for amount of heat. Delta U stands for change in internal energy. P stands for pressure, or delta V stands for change in volume. So this is what we can say here. ये होता है mathematical deduction for first law of thermodynamics. और इसके sign conventions होते हैं. Q का sign conventions मैंने already बताया. If Q is in positive, then amount of heat is absorbed by the system. If Q is negative, amount of heat is released by the system. तो Q का sign conventions क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Either heat is absorbed or either heat is released by the system. ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा. Clear with this? So also you got the mathematical deduction of this first law of thermodynamics. Clear with this? So that is what we have. Once again, see mathematical deduction or mathematical proof of first law of thermodynamics. What it states that consider a system having internal energy U1. System absorbs Q amount of heat, whereas its internal energy becomes U, and some amount of heat is or energy is lost in the form of work. So based on the consideration, we can like this one: U1 plus Q is equal to U2 minus W. Just simplifying or solving this, we get finally this one. क्योंकि हम ये जानते हैं W is equal to minus P delta. Putting this value here in this equation, we get finally this: Q is equal to delta U plus P delta V. Q stands for heat, delta U for change in internal energy, P for pressure, and delta V for change in volume. These are the considerations of this one. Clear with this? So this is the mathematical proof of first law of thermodynamics. Now,
we can calculate the value of Q at different conditions. Different conditions मतलब क्या होता है कि हमने process देखे थे, that is isobaric process, isochoric process, isothermal process, accordingly हमने changes किए थे. तो अगर हम लोग isochoric process मानते हैं, what will happen then? Isochoric process मतलब delta V must be equal to 0. अब जानते हैं definition देखा था, isochoric process is the process in which volume remains constant. So V2 minus V1 must be equal to 0. तो delta V अगर 0 है तो this total factor will become 0. So whatever the Q is nothing but the change in internal. Whatever the change in internal energy is nothing but the Q. So this happens. So this is, you can say, first law of thermodynamics can be verified at different conditions, can be calculated at different conditions. Isobaric process, isochoric process, isothermal process. वगैरह वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बस उनके वैल्यूज पुट करो आपको मिल जाएगा. Clear with this? So this is the mathematical deduction of first law of thermodynamics. Now, immediately we have to move for the second law of thermodynamics. The reason behind that, first law didn't state anything about the change of direction. Change of direction के बारे में कुछ नहीं कहा. देखिए, first law क्या कहता है आपको? Energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another. एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. But ये जो है, ये चेंज ऑफ डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहता है. चेंज कहाँ से होगा? हमेशा वन फॉर्म का दूसरे में कन्वर्जन होगा, दूसरे का पहले नहीं होगा. ये क्या है? What about this change? So first law didn't state anything about the change, and that's why we have to discuss the second law of thermodynamics. So let's move to the next statement, next definition called the second law of thermodynamics. Here, so we are here, second law of thermodynamics. Here, we have to discuss second law of thermodynamics. Why we need to go for that? Because first law didn't state anything about the change of direction. Change कहाँ से क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, and that's why we need to go for this. That is called as second law of thermodynamics. ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, ये law भी आप अच्छी तरह जानते हो, but नहीं पता आपको कि this is called as second law of thermodynamics. चलो अब मैं आपको एक बताता हूँ कि suppose मान लो मेटल का पीस है, एक मेटल का पीस है, और मेटल के पीस को मैंने यहाँ पे हीटिंग कर दिया, यहाँ से हीटिंग कर दिया, है ना? तो व्हाट विल हैपन? हीट यहाँ से फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा. तो हम ये जानते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. कभी ऐसा हुआ है हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड? नेवर. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. तो अगर हम किसी भी मेटल पीस को एक एंड को अगर हम हीटिंग करते हैं तो हीट दूसरे एंड पे अपने आप चला जाता है. तो इसका मतलब है heat flows from hot end to cold end. So this is itself is the second law of thermodynamics. This is the second law of thermodynamics, है ना? ये आप जानते थे, heat always flows from hot end to cold end. ये हम 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए, but हमें पता नहीं कि this is a second law of thermodynamics. तो अभी क्लियर हुआ? Heat always flows from hot end to cold end. This is called as a second law of thermodynamics. So flow of heat, है ना? So flow of heat is always unidirectional. Flow of heat is always unidirectional from hot end to cold end. हमेशा hot end से cold end तक जाए. Cold end से hot end कभी नहीं आ सकता heat. This is called as we can say second law of thermodynamics. जिस तरीके से first law के हमने statement देखे कई सारे, इसके भी देखने पड़ेंगे हम लोग, because हमें उसे thermodynamics पे apply करना है. So machines के अंदर apply करना है. तो we have the second interpretation of this. उसका एक interpretation होता है. इसका interpretation ये है, उसका एक दूसरा meaning ऐसा है कि heat always flows from hot end to cold end. ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, हमेशा हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जाएगा. तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताता है. उसी को दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हीट कुड नॉट बी कन्वर्टेड, हीट और मैकेनिकल हीट और हीट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. हीट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. दिस इज द स्टेटमेंट, सेकंड इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब क्या है? Heat could not be converted into equivalent amount of work. Heat energy could not be converted into equivalent amount of work. इसका मीनिंग ऐसा होता है, चलो मैं 100 रुपए लेके मार्केट में जाता हूँ, मुझे चेंज चाहिए, 100 रुपए की मुझे चेंज चाहिए. तो मेरे पास 100 का एक नोट है और मुझे उसके चेंज चाहिए. तो अगर सामने वाला मुझे 100 रुपए का नोट लेके 10-10 के 10 नोट देता है, तो इट इज इक्विवेलेंट, है ना? क्या अभी बच्चों की तरह हम ऐसा तो देखेंगे यार, एक नोट लेके मुझे 10 मिल गए तो खुश हो जाते हैं, है ना? घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग उनको पैसे देते हैं, तो छोटे बच्चों को समझ भी नहीं आता, उसका कीमत पता नहीं ना. तो छोटे छोटे 2 नोट देगा तो बोलेगा मेरे पास 2 नोट है. मतलब 2 बच्चे, छोटा बड़ा, है ना? छोटे को 10-10 के 2 नोट दिए खुश होता है, उसके पास 2 नोट है. और बड़े को 50 का एक नोट दिया तो वो बोलता है मेरे पास एक ही नोट है.
क्योंकि वैल्यू दे डोंट नो, बट हम जानते हैं मैं अगर 100 का नोट चेंज करने जाता हूँ तो 100 का नोट चेंज करने के बाद अगर 100 रुपए का एक नोट देता हूँ तो 10-10 के वो 10 देता है, इक्विवेलेंट है, मैं लेके आऊंगा। अगर 10-10 के वो 11 देगा तो खुश होकर लेके आऊंगा। 10-10 के अगर वो 9 देगा तो उसको बोलूंगा यार 9 कम है और एक दे दे, लाइक दैट, है ना। अगर वो 20 के 5 नोट देता है तभी भी इक्वल होता है, वो 50 के 2 नोट देता है तभी भी 100 के इक्वल होता है। सो 100 का नोट मैं चेंज लेके 50 में 20 के या 10 के नोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट। उसी तरीके से हीट को वर्क में, इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इक्विवेलेंट वर्क में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। जिस तरीके से 100 का नोट लेके जाएंगे तो मानो कमीशन लेके उसने 95 दिए या फिर कमीशन लेके उसने 98 दिए या 90 दिए, या हो सकता है कभी गलती से ज्यादा भी थी, बट उतना नहीं मिलेगा। सो सेकेंड लॉ यही कहता है, हीट could not be converted into equivalent amount of work. उसका दूसरा साइंटिफिक एग्जांपल, हमारी गाड़ी हम 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उसके अंदर हमने पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल डालने के बाद मानो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है ना, तो 60 किलोमीटर हम चले गए, बट हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमने 60 किलोमीटर तक हमारे 2 व्हीलर चलाने के बाद 2 व्हीलर का इंजन तो ठंडा हो जाता है एकदम, राइट? नहीं, 2 व्हीलर का इंजन गर्म हो जाएगा, 4 व्हीलर का इंजन गर्म हो जाएगा। तो आप देखिए ना, साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं तो 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलाने के बाद हमारी गाड़ी का इंजन गर्म होता है, तो इंजन ठंडा कैसे होता है? फिर वो इंजन अपनी हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है, और जैसा उसका हीट सराउंडिंग में चला जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने पेट्रोल थोड़ी सराउंडिंग के लिए पुट किया था, हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल वर्क के लिए पुट किया था, लेकिन गाड़ी के अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट के कारण आज की तारीख में हमारे पास ऐसे इंजन है जो कि हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इंजन बने जो हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो आज हमारा जो 60 किलोमीटर गाड़ी जा रहा है वो हो सकता है 70-80 किलोमीटर आगे चले, बिकॉज वी डिडंट अलाउ हीट टू एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। बट आज ऐसा नहीं है, आज की तारीख में हमारी गाड़ी का इंजन जो गर्म होता है दैट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, और वो परमानेंटली सराउंडिंग के अंदर चला जाता है, दैट परमानेंटली गोज इनटू द सराउंडिंग, है ना। ऐसा नहीं कि रिकवर कर पाते हम लोग, दैट इज परमानेंटली लॉस, वो हमारा लॉस है। साइंटिफिकली हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क आउट ऑन दैट, हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट, व्हाटएवर द energy we have lost in the form of heat to the surrounding, that has to be stopped because it can be converted into work, ज्यादा वर्क मिल सकता है, but till date we don't have such type of engine, वैसा नहीं है, such type of engine हमारे पास नहीं है। This is a challenge before us कि हमें ऐसा कुछ तो बनाना पड़ेगा ताकि हमारे हीट के फॉर्मेट में लॉस ना हो। Whatever heat we have lost in the surrounding, that is a permanently we have lost as of now के लिए। So this is what ये second law यही कहता है, second law का interpretation यही कहता है कि heat could not be converted into equivalent amount of work, ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बरेली करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वहाँ पे इफिशिएंसी जो है ना 55% से 60% के बीच में होता है। मतलब कोल के हीट में से जितना एनर्जी रिलीज होता है उसमें से 55% ही हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं, रिमेनिंग नहीं कन्वर्ट कर पाते हम लोग। सो दिस आर द बिग चैलेंजेस कि जो हम पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाए नहीं कर पा रहे, यही सेकंड लॉ बताता है, कर नहीं पाते बट मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग। These are the challenges। और तीसरा इंटरप्रिटेशन, मतलब वही उसका मीनिंग होता है, no machine it has been made which has efficiency unit, no machine it has been made which has efficiency unit। दुनिया में आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जिसका efficiency unit, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो, पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट हो, पूरा का पूरा वर्क मिले, ऐसा कोई मशीन आज तक दुनिया में नहीं बना है। and that is what we can say, this is the third statement of second law of thermodynamics। Clear with this? So once again, there are 3 statements of the second law of thermodynamics. First law of thermodynamics didn't state about the change of direction, that's why we need to go for second law। Second law tells us about the change of direction। So पहला जो आता है उसके अंदर का, that is what we can say, energy can neither the flow of heat is always unidirectional from hot end to cold end। So this is the first statement। Second statement is that heat could not be converted into equivalent amounts of work। Heat could not be converted into an equivalent amount of work without producing permanent changes either in system or surrounding। सिस्टम या फिर सराउंडिंग में कहीं ना कहीं परमानेंट चेंजेस आ ही जाते हैं, उसके से हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट ये है दैट यू कैन से नो मशीन इट हैज बीन मेड व्हिच हैज एफिशिएंसी यूनिट, जिसका एफिशिएंसी यूनिटी हो, मतलब 100 के नोट का 100 के बराबर दाम आए, लाइक दैट टोटल हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई मशीन आज तक बना नहीं है।
थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी हीट किसी ना किसी फॉर्मेट में लॉस होता है, वो चाहे सिस्टम में चेंज करता है या तो सराउंडिंग में परमानेंटली चेंजेस करता है, लेकिन लॉस तो होता है। ऐसा कोई मशीन आज तक दुनिया में नहीं बना है, ये सेकंड लॉ कहता है। सो दिस व्हाट वी कैन से स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो that's what we are. Now the next topic what is coming over here is nothing but the enthalpy, which is a very important concept or milestone concept in the chemistry, वो हमें डिस्कस करना है। So what we have discussed in today's lecture, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। बस हमने दो ही टॉपिक डिस्कस किया। नंबर 1, we are seeing first law of thermodynamics and different statements of first law of thermodynamics. दूसरा, mathematical deduction of first law of thermodynamics, that is the derivation we have seen for that. तीसरा देखा हमने, that is you can say here modified first law of thermodynamics because of Einstein. और फोर्थ टॉपिक हमने देखा, that is you can say second law of thermodynamics. तो we have seen second law of thermodynamics. ये सारा theoretical part था, सिवाय एक डेरिवेशन के हमारे, ठीक है ना। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में विल डिस्कस अगेन एंथैल्पी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सही मायने में जो कोर है थर्मोडायनामिक्स का, वो एंथैल्पी के साथ शुरू होता है, और हमारे केमिस्ट्री के अंदर एंथैल्पी के सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं और एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो with